Good morning, my dear beloved people of the country. Good morning, my dear esteemed citizens of the country. CFB. What is CFB? Crime Free Bharat. Aparad Mukt Bharat. Who will achieve this? People. It's made of whom? People. For whom? People. It's of the people, by the people, for the people. इसके 5 स्तंभ हैं, 5 pillars. CDCPR. C for cognizance, D for detection, C for conviction, P for prevention, R for rehabilitation. इसके 5 स्तंभ हैं, 5 पिलर्स हैं, 5 ऑब्जेक्टिव्स हैं. Certainty of cognizance of an offense, certainty of detection of an offense, certainty of conviction for an offense, certainty of prevention in future, certainty of rehabilitation of the offenders. ये 90-10 मॉडल के ऊपर बेस्ड है. ये 90-10 क्या है? What is 90-10? It's a 90-10 model. There is a paradigm shift of work from people to process. Multiple technologies will be deployed, employed, used, implemented to get rid of crimes, to bring a drastic reduction to an unimaginable extent in the crimes across the country. Burden on the police will be reduced by 90%. That 90% work is taken over by technological infrastructure, process, machinery, which is going to be deployed, employed, used, implemented. The police have to do 10% of the work. As of now, what they are doing, the 10% they can do with 100% commitment. It will reduce administrative costs. It will improve efficiency. It gives effective results. Revenue share model. What is this revenue share model? Whatever fine is put for the offense on the offender, the fine is divided into 3 parts. A major chunk will go to the government, a major share will go to the public, a minute share will go to the technological infrastructure. Let's take an example.
Suppose for an offense 2,500 rupees is levied as a fine. इसमें से 500 जाएंगे मिशनरी, एक छोटा सा शेयर टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को, 1,000 रुपये जाएंगे भारत सरकार को, 1,000 रुपये जाएंगे देश की जनता को. 1,000 rupees for government, 1,000 rupees for public, 500 rupees for the technological infrastructure, the mechanisms, the processes, the systems. And how much revenue is expected to be generated? There is a possibility that the GDP of the country will multiply by 3 times. It's the minimum that is expected. It's going to generate revenue to the government to a very, very, very high extent. It's going to generate huge revenue in the hands of public. There is going to be a drastic change in the criminal behavior. हर एक अपराधी अपराध करने के पहले ये सोचेगा, अरे भाई इतना फाइन भरना है क्या? उसके बजाय सही रास्ते पे चलते हैं. गलत रास्ते पे चलेंगे तो इतना सारा फाइन भरना पड़ेगा. इसके बदले सही रास्ते पे चलेंगे, इतना फाइन भरने की जरूरत नहीं है ना. और जो अपराधी फाइन भरेगा उस फाइन को 3 हिस्सों में बांट दिया जाएगा. एक हिस्सा जाएगा भारत सरकार को, एक हिस्सा जाएगा भारत की जनता को, whoever is informing the crime. एक हिस्सा जाएगा वो टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को. Every person in the country will become an informer for the crime. क्यों करेगा ऐसा? अरे भाई उसको इन्फॉर्म करने के लिए पैसे मिलेंगे. He will earn revenue out of it. चाहे वो छोटा बच्चा हो, बूढ़ा हो, अगर कोई क्राइम हो रहा है उसके बारे में वो इन्फॉर्म करेगा. अफेंडर के ऊपर ऑफेंस करने के लिए फाइन लगेगा. उस फाइन में एक हिस्सा उस पर्सन को भी मिलेगा, उस आदमी को भी मिलेगा जो क्राइम के बारे में इन्फॉर्म करेगा. तो क्यों नहीं करेगा वो? अरे भाई आम जनता के लिए ये एडिशनल रेवेन्यू होगी और ये एडिशनल रेवेन्यू बहुत 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 भारी प्रमाण में होगी. How it works? Let's take an offense. उस ऑफेंस के बारे में जनता से कोई भी आदमी इन्फॉर्म करेगा. किसको इन्फॉर्म करेगा? एक टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम्स हैं, प्रोसेस हैं, फॉर द टेक. ही विल इन्फॉर्म द टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर. सो एक है इन्फॉर्मर, दूसरा टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर. ये टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सिस्टम्स हैं, प्रोसेस हैं, मशीनरी है, ये
इंस्ट्रक्शन देगा एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी को, ऐसा क्राइम हो रहा है, आप एक्शन लो। मतलब तीसरा है एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी। वो पुलिस हो सकते हैं, कोई भी एजेंसी डिपार्टमेंट हो सकता है। और एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी उस अफेंडर के ऊपर एक्शन लेगा। मतलब चौथा है अफेंडर, पहला इन्फॉर्मर, दूसरा टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी, चौथा अफेंडर। सो इन्फॉर्मर, टेक्नोलॉजिकल, कभी भी किसी भी तरह का क्राइम हो, छोटा हो या बड़ा, पब्लिक में से, आम जनता में से कोई भी टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को इन्फॉर्म कर सकता है। ये तो इन्फॉर्मर है। टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करेगा? एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी को इंस्ट्रक्शन देगा, ऐसा क्राइम हो रहा है, आप एक्शन लो। और एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी करेगा क्या? अफेंडर के ऊपर एक्शन लेगा। इसमें होगा क्या? अफेंडर ऑफेंस के लिए फाइन भरेगा। उसके बाद क्या होगा? उस फाइन को 3 हिस्सों में बांट दिया जाएगा। एक हिस्सा जाएगा भारत सरकार को, एक हिस्सा जाएगा आम जनता को, और तीसरा हिस्सा जाएगा एक छोटा सा टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को। इसके अलावा और भी उद्देश्य हैं सीएफपी में, क्राइम फ्री भारत में। टू कन्वर्ट barren lands into green lands। इस प्रोसेस में इतने आमदनी की उत्पत्ति होगी कि भारत के हर इंच के भूमि को ग्रीन लैंड में बदल सकते हैं। हां, आप सही सुन रहे हैं। हर इंच को, भारत के हर इंच के भूमि को ग्रीन लैंड में हम बदल सकते हैं। ये हो सकता है। और कोई भी आदमी कहीं भी किसी भी वक्त बिना किसी अपराध के डर के कहीं भी घूम सकता है, काम कर सकता है, चैन से रह सकता है। भाई और बहनों, इसके बारे में सोचो। ये तो एक छोटा सा क्राइम फ्री भारत के ऊपर, सीएफपी के ऊपर एक ग्लिम्स से मात्र है। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम।